الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آج کے مذاکرے میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا ظفر الحسن مدنی اور مولانا محمد اشفاق سلفی اور مولانا ولی اللہ سعیدی اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتا پوری۔ آج کا عنوان ہے اسلامی گھرانے کی تعمیر میں کیا رکاوٹیں ہیں، کن اسباب کی بنا پر اسلامی گھرانہ بن نہیں پاتا ہے۔ میں مولانا مفتی شکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے میں بتائیں کہ کیسے آدمی یا خاندان اسلام سے دور ہوتا ہے اور کس طریقے سے نعوذ باللہ مسجد سے اور دینی حلقوں سے دور ہونے کا کیا اس کے نتائج ہیں۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ جس طرح ہم پودے کی تربیت کرتے ہیں جی کہ اس کے مناسب اس کی غذا اور اس کا پانی پہنچاتے ہیں، جی اسی طرح جو اس پودے کو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچانا ضروری ہے۔ تو تعمیر کس طرح ہوتی ہے وہ تو باتیں آ گئیں، لیکن تعمیر میں رکھنا کون سی چیزیں ڈالتی ہیں؟ تو ایک چیز تو بری صحبت ہے، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ برے آدمی کی صحبت ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی صحبت یا بھٹے والے کی، کہ اگر کچھ نہیں تو اس کی چنگاری ہی پڑ جائے گی اور جل جائے گا، اور اچھے آدمی کی صحبت ایسی ہے جیسے مشک والے کی، اگر کچھ نہیں دیا تو اس کی خوشبو ہی سے مشام جاں معطر ہو جائے گا۔ تو بری صحبت سے بچانا اولاد کو، برے نتیجے سے بچانا گھر کو، اور بری جو خواتین یا برے مرد گھروں میں آتے ہیں چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، وہ خیال فاسد لاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں من الجنۃ والناس کی شیاطین بھی غلط وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور انسان بھی غلط وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ مل کے یاروں سے ہوا ذوق گناہ، آدمی کو آدمی شیطان ہے۔ تو اولاد کی یا بیوی کی یا خود اپنی حفاظت بری صحبت سے، غلط لٹریچر سے اور برے پڑوسیوں سے، اور اسی طرح سے ٹی وی اور اس طرح کی باتیں آئیں کہ جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ جیسے پورے شہر کی غلاظت اس میں آ گئی۔ یعنی کیبل ٹی وی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کیبل ٹی وی میں جو آج کل ایسی ٹی وی جس میں اب جیسے بعض اہل قلم نے لکھا ہے کہ پورے شہر میں جو غلاظت ہے وہ صرف ایک بکس یعنی ٹی وی میں آ گئی، کہ کہیں پر جوا ہو رہا ہے، کہیں پر قتل ہو رہا ہے، کہیں پر زنا ہو رہا ہے، اور ٹی وی میں یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ یعنی ٹی وی ایک دوست بن چکا ہے جی ہاں آج کے معاشرے میں۔ تو یہ اس سے بھی بچانا، اور مسجد کے ماحول سے بچوں کو مانوس کرنا، صلحاء کی مجلسوں میں بچوں کو لے جانا اور اچھے اسلامی لٹریچر کو گھر میں لا کر پڑھنے کی طرف رغبت دلانا، اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ پیدا ہوں اور رکاوٹیں دور ہوں تو انشاءاللہ اسلامی۔ میں سمجھتا ہوں جی ہمارے نور صاحب کہ ہمارے سیتا پوری صاحب نے تو بہت ساری چیزیں اس میں الحمدللہ گنا دی ہیں اور بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ جی اچھا اسلامی خاندان بننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شریک حیات کا صحیح انتخاب نہ کرنا ہے۔ وہ تو پہلے بات آ چکی ہے، آ چکی ہے، لیکن چونکہ نیا ایپیسوڈ آپ اس وقت دے رہے ہیں، میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ شریک حیات کا صحیح انتخاب ہم نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم دین کی کمی، دینی جو معلومات ہے، کتاب و سنت کا جو علم ہے، دین کی جو تعلیمات ہیں، یہ چیزیں گھروں کے اندر ہمارے موجود نہیں ہیں۔ یعنی علم دین کی اہمیت مطلقاً نہیں ہے، اب اپنے بچوں کو ثانوی حیثیت اس کی ہو گئی ہے۔ علم کے بارے میں جو لوگوں کا ہے بھی احساس، وہ بھی کہ انگلش میڈیم پڑھاؤ تو فلاں کرو، اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو دین کو پڑھانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس سماج اور معاشرے میں بھی اویئرنس میں مکتب ہے تو اسی ہی قسم پرسی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، اچھا سلیبس ہو، اچھے پڑھانے والے ہوں، اچھا تقویٰ پیدا ہو رہا ہو۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، ہم ناظرہ کے لیے کسی استاد کو رکھ لیا، کسی ٹیچر کو رکھ لیا، وہ بھی بیچارہ معمولی، تو اب وہ ناظرہ صرف پڑھا دیا اور سمجھ لیا ہم نے سارا کام ہو گیا۔ تیسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد جو ہے وہ ہمارا تربیت کا سب سے بہترین سینٹر ہے۔ نماز ہے وہاں ہو رہی ہے، تذکیر ہے، درس ہے، دیگر اور چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
की ज़िंदगी से हम समझते हैं कि मस्जिद तो पूरा सेंटर होता था इन सारी चीज़ों का, तो हमारी मस्जिद वो किरदार तो अदा नहीं करते, लेकिन जो कुछ किरदार अदा हो रहा है वहाँ से अटैचमेंट भी हमारा कम है। ना शौहर जाता है मस्जिद में, ना उसके बच्चे मस्जिद में जाते हैं, ना उससे हमारी रग़बत है। तो जो हमारा इस्लामी ख़ानदान है उसके सिलसिले में बड़ी रुकावट ये भी है कि मस्जिद का जो अटैचमेंट है वो हमारा रुक गया है, वो हमारा टूट गया है। तो ये वो पहलू हैं जिस पर अगर हम गौर करें और उसका कुछ हम इलाज भी करें तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बेहतरी आएगी और काम बेहतर होगा। इस्लामी ख़ानदान के बिगड़ने में एक पड़ोसियों का भी किरदार है। पड़ोसी अगर बुरा हो, और हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जारि सू। मौलाना आप इस सिलसिले में रोशनी डालें कि अच्छे पड़ोसी का इख्तियार। पड़ोसी का और मुसाहिबत का बहुत बड़ा असर होता है, इसीलिए अच्छे पड़ोसी का इख्तियार करना और अच्छे पड़ोस में रहना इस्लाम ने इसकी बड़ी तरगीब और रग़बत दिलाई है। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन नबी दाऊद की रवायत, ला याकुलु तआमका इल्ला तक़ी वला तुसाहिब इल्ला मुमिना। हाँ, तुम्हारा खाना मुत्तकी लोग खाएं और तुम्हारा साथ जो हो वो मोमिनों का हो। और मोमिन भी कैसा, नाम का मोमिन नहीं, अमली मोमिन हो पड़ोस में, समझ गए ना। इसीलिए जिस हदीस की तरफ शेख ने इशारा किया बहुत ही अहम थी कि वो मसल जलीस सुई कनाफ़ खिलकीर, समझ गए ना। इंसान जिसके पड़ोस में रहेगा वही असर उसको मिलता रहेगा। इसीलिए इंसान अपनी औलाद के लिए, मिसाल के तौर पर एक इंसान पड़ोस में है और पड़ोसी का ख्याल नहीं करता, पड़ोसी में एक ऐसा इंसान है जो गैर सालेह या हो सकता है कि गैर मुस्लिम या गैर सालेह है, उसके घर में बच्चा जा करके, माँ बाप जिस बुराई से रोकते हैं, बच्चा उस घर में जा करके बुराई करके आता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, यही होता है। बल्कि बसा औकात ऐसा होता है कि दरवाजा माँ बाप बंद भी कर देते हैं तो दीवार फलात करके ऐसे केस आए कि बच्चा गलत पड़ोसी के यहाँ जा रहा है, और माँ बाप को पता कब चला, जब छलांग लगाने में पैर टूट गया और हॉस्पिटल जाने की नौबत आई, तब पता चला कि सारी नहुसत गंदे पड़ोसी की है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम बद पड़ोसी से दुनिया में भी पनाह मांगते थे और आखिरत में भी पनाह मांगा करते थे कि वहाँ भी अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों से बचाना। इसलिए अगर कोई इंसान अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत करना चाहता है तो अच्छे पड़ोसी को साथ। यहाँ एक चीज़ और बता दें, कभी ऐसा होता है कि हम पड़ोसी की बात तो दूर में जाते हैं, हमारे घर में जो हम बहुत सारे अफराद कभी मिल करके रहते हैं, मिल के रहना कोई ऐब की चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कभी एक इंसान, आप अपनी औलाद को जो सही तालीम और तरबियत पर ले जाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन पड़ोस में आपका कोई दूसरा भाई या उसी घर में रहता है, उसके कमरे में उसके बाल बच्चे गलत हरकतें करते हैं तो आपका बच्चा उस बुराई से भी महफूज नहीं रह जाता। इसलिए इस पर भी माँ बाप की निगाह होनी चाहिए। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर जरा गौर करें, आपने इरशाद फरमाया कि अलमरउ अला दीन खलील ही, आदमी अपने दोस्त, अपने साथी, अपने पड़ोसी के असर को कबूल करता है। इसीलिए दोस्ती का हाथ, ताल्लुकात का हाथ बढ़ाने के लिए जरूरी है फलयंजुर इला मन युखालिल, उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के पहले देखना चाहिए कि दोस्ती और ताल्लुकात से कायम कर रहा है। और गालबन यही वजह है कि कुरान और हदीस में बड़ी सख्ती के साथ बुरे साथियों से मना किया गया। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम है, लेकिन अल्लाह ताला नबूवत अता कर रहे तो क्या फरमाया, इन्ना साअता आतियतुन अकादु उख्फीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसअ फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा। आप भी को हिला कर डालेगा। इसीलिए दो ताल्लुकात, दोस्ती, पड़ोसी, इन तमाम चीजों में बहुत ही जरूरी है कि माँ बाप ख्याल रखें किसके साथ बच्चा उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, पड़ोस में कौन है और पड़ोसी के घर का माहौल क्या है। इंसान इससे अपने आप को बचाए। बल्कि बसा औकात नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसा भी होता है कि गंदे पड़ोसी, आपका बच्चा अगर बिगड़ रहा है, गलत राह पर जा रहा है आपके बच्चा या बच्ची, तो आपका बेदीन पड़ोसी आपसे छुप करके आपके बच्चों की हिमायत भी करता है। जी। और ये बहुत बड़ी ख़यानत है, बहुत बड़ी ख़यानत है पड़ोसी के साथ। तो इसलिए
ऐसे पड़ोस से, ऐसे मामला से अपनी औलाद को बचाना चाहिए। जी, मैं नाज़रीन किराम आपसे एक वक्फे के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने आएंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इंतज़ार करने का शुक्रिया। इस्लामी घराने की तामीर में क्या रुकावटें हैं, इस सिलसिले में हमारी बात हो रही थी। पड़ोसियों को तो जिक्र हुआ, लेकिन ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि नाना नानी या दादा दादी जी उनके लाड़, उनके प्यार में और बच्चों की मोहब्बत में जो भी चाहे दे देते हैं, बच्चों की मर्जी का ख्याल करते हुए इस्लामी हुदूद का ख्याल नहीं रखते। इस सिलसिले में आप बताएं कि ख़ानदान में अगर हो तो क्या करें। देखिए, असल जिन बुनियादों पर मिसाली इस्लामी ख़ानदान वजूद में आता है जी, अगर वो बुनियादें सही तौर पर उस्तवार ना हों तो ख़ानदान का बिखराव यकीनी। इसी आपका ये मौजू बहुत ज़्यादा मरबूत है ख़ानदान की तश्कील में वालिदैन का किरदार। जी, तो जिन बुनियादों पर एक मिसाली ख़ानदान, एक मिसाली घराना वजूद में आता है, अगर वो बुनियादें मुतज़लज़ल हों तो ज़ाहिर है कि ख़राब बात होगी। जिसमें इंतखाब ज़ौजैन की बात आ गई है, वो सही होना चाहिए। उसके बाद ये है कि साहब आदम कफ़ात, ख़ानदान में सिर्फ सारा जोर बच्चों पर नहीं है, ख़ानदान में असल मेन पिलर मियाँ बीवी, उनकी इस्लाह की तरफ तवज्जो देनी है कि वो खुद कैसे इस्लाह पजीर हो कि उस इस्लाह का अच्छा असर बच्चे पर पड़े। तो अब मियाँ बीवी के इंतखाब में जहाँ तक बात होती है, उसके अंदर वो आदम कफ़ात की जो बात होती है, ये भी आजकल बड़ा फैक्टर है। अब मिसाल के तौर पर मर्द माशाअल्लाह नेक, साले, दीनदार है, आलिम व अमल है। अब आप उसको अगर मॉडर्न क्लास की लड़की आप देते हैं, नतीजा ये हुआ कि तालमेल सही नहीं हुआ। एक नहायत पाकीज़ा शरीफ घराने की दीनदार खातून है, आपने पैसे की खातिर, नामो नमूद और शोहरत की खातिर नीरे दुनियादार के हवाले आपने कर दिया। तो ज़ाब्ता ये होना चाहिए जो कुरान ने ज़ाब्ता दिया, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबूना लित्तय्यबात। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी तो ठीक होती है, मियाँ बीवी अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन ख़ानदान में मतलब चचा है या भाई है, दूसरे। मैं बात पे आ रहा हूँ, मैं असल में ये कहना चाहूँ कि ख़ानदान में बिखराव क्यों है। मियाँ बीवी के दरमियान में अदम कफ़ाअत, ना बराबरी जी, दीनी एतबार से। जी, साबित बिन कैस बिन शम्मास की बीवी ने जो खुला लिया था, उसकी भी वजह भी ला ओई बहु फी दीनिही वला फी खुलुक़ी, दीन और अखलाक में कोई ऐब नहीं था, लेकिन दमीमुल खिलकत थे, बदसूरत थे, नहीं बीवी थे। तो ये बात भी देखने की है। उसके बाद मियाँ बीवी के अंदर होता क्या है, सूए तफाहुम। मिसाल के तौर पर मैं बहुत से ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि मर्द ने शादी की, लड़की ज़ेरे तालीम थी, शादी तो कर लिया, अब उसके बाद लड़की को मदरसा छोड़ना है, कॉलेज छोड़ना है, लाने का मसला है। अब आप ब्रेक लगा रहे हैं और लड़की और उसके घर वाले चाहते हैं कि उसकी तालीम जारी रहे, कंटिन्यू रहे। या शादी से पहले वो कहीं काम कर रही थी, अब शादी के बाद आपने तो कह लिया कि ठीक है करेगी, अब आपको जो लगा कि साहब गलत ताल्लुकात भी इसके हो सकते हैं और हंस के दूसरे से बात कर सकती है और ये है वो है, अब उसके बाद आई तो घर में जो घमासान बचती है जिसका सीधा मनफी असर बच्चों पर पड़ता है, अब आप उसको काम से रोक रहे हैं। तो ये बातें पहले इब्तिदाई निकाह में, इब्तिदा शादी के वक्त में तय हो जानी चाहिए कि ये तालीम जारी रखेंगी कि नहीं रखेंगी, मुलाजमत करेंगी कि नहीं करेंगी, करेंगी तो क्या इस्लामी दायरा है, क्या हद है, इन बातों का लिहाज होना चाहिए। वैसे शादी की वजह से तालीम रुकना नहीं चाहिए। मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जारी करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बुनियाद पे जो इख्तिलाफ पड़ता है, ये एक बुनियाद है। आपने जो एक बात की, नाना नानी का लाड और प्यार, नाना नानी का लाड प्यार तो अपनी जगह बच्चे को कुछ हद तक बिगाड़ता भी है, लेकिन उससे बड़ा असर है जो हमारे किसी मुतकल्लिम ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि रिश्तेदारों की बेजा मुदाखलत। घर में मिसाल के तौर पर यह है कि साहब नाना नानी आ गए, समझा कि नहीं, या लड़का अगर बाहर रहता है बीवी के साथ तो दादा दादी पहुंच गए। अब उन्होंने जो देखा कि मेरा बेटा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, बहुत उसको नवाजता है, बहुत से तोहफे तोहफ़ ला कर देता है, तो अब वो परेशान होते हैं, अपने आप में कुड़ते हैं और बेटे को बीवी से वज़न करते हैं। या इसी तरीक़े से अगर लड़की के ख़ानदान के लोग आ गए तो वो मर्द से बेजा मुतालबात के लिए उसको उकसाते हैं, फिर वो वहीं जम के रहते हैं। बाज़ ऐसी फैमिलियाँ भी हो सकती हैं जहाँ महीने में 25 दिन उनके माँ बाप रोज़ाना आते हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार आता है, तन्हाई कोई ना कोई रिश्तेदार आता है, तन्हाई। सलफ़ी साहब ने काफ़ी बातें रखी हैं, सलफ़ी साहब ने काफ़ी बातें रखी हैं। शौहर की जिम्मेदारी तो बहुत ही गैर मामूली उसमें है जी। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बेचारे अपने बच्चों से हफ्ते में इतवार को सिर्फ मिलते हैं। वो बात की तायद में बता रहा था। मैं एक और बात पेश करना चाह रहा था, वो ये कि आम घरानों में ये बातें अब बढ़ती चली जा रही हैं, मुस्लिम घरानों में भी ये बात आ गई है, लेकिन मैं दूसरे एंगल से उसको कहना चाहता हूँ कि बीवी भी कमाए और
घर के हालात अच्छे हों, फलां हों, उसका एक बड़ा नतीजा ये होता है बिगाड़ का कि बाप भी बाहर है कमा रहा है और बीवी भी कमा रही है। अब बच्चों की तरबियत कौन करती है? दाया करती जी है जी बिल्कुल सही, खादिमा, या खादिमा करती है। बिल्कुल। तो अब खादिमा के नतीजे में जो बच्चा तरबियत पाएगा उसका क्या होगा? उसका एक और भी है इम्पैक्ट। मेरे पास बहुत सारे नौजवान आते हैं और वो मशवरा ये लेते हैं कि मुझे शादी करनी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या करूँ? तो एक डॉक्टर की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी भी डॉक्टर हो, हम पेशा हो। इंजीनियर चाहता है मेरी बीवी भी इंजीनियर हो वगैरह। ये मायूब नहीं है कि एक डॉक्टर से शादी करे। मसला जो आज पेश आ रहा है दुनिया में जो हो रहा है वो ये है कि वो भी मसरूफ, ये भी मसरूफ। अब वो जब शौहर घर में आता है तो बीवी नहीं, बीवी घर में है तो शौहर गायब है, दोनों को सुकून नहीं मिलता। ऐसे केसेस इस वक्त समझ में आ रहे हैं कि शौहर उस तस्कीन के लिए आशनाइयाँ उसकी बढ़ती हैं, नौज़ बिल्लाह, और बीवी भी बेराह होती है। बच्चा जो उस घर में पलता है बसा औकात ऐसी ऐसी बुरी बुरी हरकतें सीखता है, और जब बड़ा होता है तो ना बाप का अदब है ना माँ का अदब है। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पर कम से कम मुस्लिम घरानों को ये सोचना चाहिए कि असल तो जिम्मेदारी बाप की है, और बाप की जिम्मेदारी बाहर की भी है, और जैसा मौलाना ने फरमाया घर की तरबियत की भी है, लेकिन खातून का असल मैदान घर के अंदर का है और तरबियत का है। तो अब इस सिलसिले में अगर तवज्जो नहीं होगी तो एक बड़ी रुकावट ये भी बनती है घर के निज़ाम को दरहम बरहम करने के सिलसिले में। एक चीज़ और बताएं, मेरे ख्याल से आपने वो नुक्ता नोट नहीं किया है। बच्चों के बेराह हो जाने का एक बहुत बड़ा सबब ये है कि बचपने में छोटे में बच्चे कुछ करते हैं चाहे नाजायज या हराम, तो माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं अभी बच्चा है। लाड प्यार बेजा लाड प्यार ये बहुत होता है। जैसे छोटे बच्चों को सोने की अंगूठी वगैरह हाँ, बहुत सारी चीजें लिबास है ये कबलल बुलूग पहनाने में कोई ये कहने का मतलब कि कोई गलत काम अगर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, चोरी कर रहा है, माँ के पर्स से पैसे ले गया, अभी बच्चा है, तो ये इसका बच्चा है, अभी बच्चा है, तो ये तरबियत का होना चाहिए। जरा सा एक मिसाल कि नबी साहब के सामने आपके नवासे हजरत हसन बैठे, सदके का खजूर है, बच्चे ने उठा लिया, लेकिन जानते थे कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका हराम है। आपने कहा तुम नहीं जानते आले मोहम्मद के लिए सदका हराम है। तो इस तरीके से ये बात बहुत पॉइंट की तरफ इशारा किया इन्होंने कि जो कुछ गलती होती हो उसको कहें। तो इस तरीके से अगर आप बच्चे को वाच करते हैं, तरबियत करते हैं, खा माँ करें बाप करें या जो भी वली अमर है जिम्मेदार है बच्चों के, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये आप कलम जारी रखें। जी हाँ, तो इसी हदीस की तरफ मैं इशारा करना चाहता था कि हजरत हुसैन या हसन बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खजूर छेक करके फेंक दिया, जमीन पर पड़ी उठाया खा लिया। बल्कि हदीस के अंदर आता है राल उनसे टपक रही थी, अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगली मुबारक को डाल करके उंगली साफ कर दिया, फरमाया कखिन कखिन। इसी तरह से इसमें कोई शक नहीं कि फिकही मसला जायज ना जाए, लेकिन तरबियत का तकादा ये है कि आदत उनकी बनाई जाए। मिसाल के तौर पर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, एक दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चंद औरतें आई। एक औरत ने अपनी गोद में बच्चा लिया है और उसने बच्चे का बाल जो काटा है यहाँ रख करके, जिसकी मानियत है, ऊपर रख लिया और किनारे किनारे काट दिया है। हजरत आयशा इतनी गुस्सा हो गई, कज़ा का दखल फी बैती अल यहूदियत, मेरे घर में यहूदियत कैसे लेके दाखिल हो गई। देखिए बड़ी सख्त। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला बैठी हुई है, उनका बच्चा छोटा सा है, बीवी ने समझा चलो छोटा सा है, रेशम का कपड़ा पहना जा और पहना करके हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास भेज दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद ये भी नहीं पसंद करते क्योंकि बच्चा मुंह आदि बन जाए। उसी वक्त रेशम की कमीज निकाली और देखा इसको अपनी माँ को वापस दे करके आ जाओ। तो इसलिए बहुत सारे दोस्त आप अपना बचना चाहते लेकिन आपके बच्चे को हम पकड़ा देते हैं कोई चीज। बर्थडे वाली जो लानत चली हुई है इसमें सारी नाजायज चीजें लड़कियों को ला करके दे दी जाती है। भाई हमारे फला अंकिल ने गिफ्ट दिया है, माँ बाप को देखना चाहिए कि ये चीज बच्चे की इस्लामी तरबियत के खिलाफ है या मुआफिक है, इस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। मौलाना शकील साहब, आप इस बारे में कि तालीम का असर बच्चों की तरबियत पर बहुत बड़ा होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल तालीम, निज़ाम तालीम का बागडोर गैर मुस्लिमों के पास है। इस सिलसिले में आप बताएं कि जिसकी वजह से कितने नुकसानात हो रहे हैं। आपने ये फरमा दिया कि हमारे हाथ में जो तालीमी निज़ाम नहीं है वो उसकी वजह से हमारे लड़के यही नहीं कि फासिदुल अखलाक हो रहे हैं बल्कि फासिदुल अकीदा भी हो रहे हैं। अब वहाँ जाकर के वो भारत माता के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और वहाँ वंदे मातरम करते हैं और मुशरिकाना चीज़ों के ऊपर गोया कि वो मजबूर किए जाते हैं और मजबूर होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तालीम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कॉलेज भी होने चाहिए, स्कूल भी होने चाहिए,
اور اسی معیار کے ہونے چاہیے. اور جب آج کل الحمدللہ اسلامک اسکولوں کا سلسلہ چلا ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ مسلمان دینے کی اگر ضرورت ہے. مینج کریں اپنی کوششوں کو طریقوں کو تو اس پہ کسی حد تک قابو پا سکتے ہیں. طرح سے کامیابی بہت ساری جگہوں پہ اس کی مثالیں بھی ہیں. شیخ نے کہا خادمائیں کون ہیں؟ بے دین، اچھا بے ایمان بھی ہیں. میں ایک گھر میں داخل ہوا، مسلم ملک ہے، مسلمان ماں ہے، مسلمان باپ ہے، مسلم گھر ہے. باہر گئے تھے، ہم گئے تو خادمہ کو ٹیلی فون کیا کہ مولانا آئے چائے دے دیں. واللہ میں چائے پی رہا تھا، نگاہ پڑی تو شیخ لڑکا جو ہے تقریباً 13 سال کا ہے، ہاتھ پر پیسہ درہم رکھتا ہے. اور میں نے واللہ دیکھا، کہہ رہا کیا، یا دھن تو میرا رام، تو میرا بھگوان. بچہ کہہ رہا ہے 13 سال کا. 13 سال کا بچہ، مسلم ملک کا بچہ ہے، مسلم ماں ہے، مسلم باپ ہے، مسلم گھر ہے. خادمہ کا سر لیکن خادمہ جو ہے وہ مربیہ کا خادمہ مربیہ ہو گئی. کیوں؟ ماں باپ باہر ہیں، گھر میں خادمہ جو ہے بے ایمان بے دین ہے، وہ بچوں کی تربیت کرے. اب اور آگے ذرا سنیں. آنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو کیوں رکھے ہیں، مربیہ کوئی دیندار تقویٰ شعار رکھتے. کہتے نہیں، میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ انگلش میں بات کرے گی تو میرے بچے انگریزی بولنے میں بہت زیادہ فارورڈ ہو جائے گی. ایک انگلش زبان کی خاطر انسان اپنی اولاد کو بے دین بنا دے رہا. اس میں بھی ماشاءاللہ انگلش زبان میں جاننے والے بھی مربی ہمارے پاس ہیں. نہیں، مسئلہ وہ بہانہ ہے، ایک بہانہ ہے. اصل وہ شعور نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے. وہ جو کہا نا سینس آف ریسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا گھر اسلامی گھر ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں لا علمی کا ہے، لا علمی کا حل ہے. سمجھ گئے نا؟ اگر علم ہو جائے، دینی تعلیم ہو تو معاملے سب آسان ہو جائے. ناظرین کرام، آپ کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. بڑی دلچسپی سے آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو جیسا کہ ہم نے سنا اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں علماء اکرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید آپ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.